morning, dear students. I'm your general science teacher, and this is your general science class. So kindly be attentive and keep your left register and stationery with yourself and note down the important points. ठीक है? अब हमारा आज का टॉपिक प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ी थी ना, ठीक है? अब क्लासिफिकेशन एक्चुअली कहते किसे हैं, ठीक है? To put the organisms into separate groups on the basis of similarities and differences. Organisms को separate group में रखना on the basis of their similarities and differences. This is actually called the classification of organisms. पहले आप लोगों ने simplest classification जो पढ़ी थी living organisms की, living things की classification हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना, कि both plants and animals are living things, both plants and animals have same characteristic as the living things have. तो plants and animals को क्या किया था, just two kingdom classification plants और animals की हुई थी, ठीक है? That is plant and animal. Later on जब discoveries होती रही, new unicellular multicellular organisms discover होती रहे, ठीक है? unicellular multicellular organism discover होती रहे, तो उसी time एक scientist था जिसका name है रॉबर्ट वाइटेकर। रॉबर्ट वाइटेकर ने क्या किया 1969 में, ठीक है? तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। On the basis of their similarities and differences, a scientist named Robert Whittaker divided all living organisms into 5 categories. Later on, he named them 5 kingdom system. क्या किया उसने? इसको 5 kingdom system का नाम दिया। अब हमारे पास है कि classification क्यों important है? Living things को हम क्यों classify करते हैं? अब अगर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता कि ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है, ये प्लांट्स ग्रुप से बिलोंग करता है, ये एनिमल्स ग्रुप से बिलोंग करता है? क्योंकि ये तो हमें पता नहीं होता ना, हमें तो जस्ट ये पता होता कि बोथ आर लिविंग थिंग्स, बोथ कैन ब्रीड, बोथ नीड्स फूड, बोथ कैन ग्रो, बोथ रिप्रोड्यूस, ठीक है? हमें सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक उसकी पता होती। अब ये क्लासिफाइड हुई है तो हम सिंपली इसको पहचान सकते हैं कि ये एनिमल्स है, ये प्लांट्स है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है? तो due to the classification, you can determine the similarities and differences among organisms. Due to the structure and other characteristics of organisms, we can identify and study them. We can also know the relationship among the organisms. क्यों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है? बिकॉज क्लासिफिकेशन के जरिए हम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को स्टडीज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन की वजह से हम उसके स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक को स्टडीज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन की वजह से हम उसका आपस में जो रिलेशनशिप है वो स्टडीज कर सकते हैं, ठीक है? अब हम 5 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे। आप लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम को अटेंटिवली सुनना है, ठीक है? कि कौन से किंगडम में कौन से एनिमल्स इंक्लूड है, ठीक है? So the first kingdom we are going to start, that is, there are 5 kingdoms, that is kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia. So the first kingdom is, that is the kingdom Monera. अब इस kingdom में क्या है? These are made up of one cells. आप लोग इस kingdom की ये characteristic, ये properties अपने साथ note करें कि kingdom Monera में वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगी जो बी अटेंटिव स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव। आप लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम को समझना है, ठीक है? जुल्किफल, हमजा, हबीब, दावर, शहीद जिया, अटेंटिव हो जाए, शाबाश। अब जो है मोनेरा में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है? They are mostly unicellular. Unicellular means their body is made up of only one cell. If this is unicellular, it means they are microscopic. Because their body is made up of only one cell से बना है, it is the smallest living organism which can only be seen under the microscope, ठीक है? The second is their structure is very simple. Their structure is very simple. The third one is जो कि मोनेरा को प्रोटेस्टा से डिफरेंशिएट करती है,
तो वो क्या है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में दोनों किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बट द डिफरेंस इज व्हाट, मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है दे हैव नो न्यूक्लियस इन देयर साइटोप्लाज्म। ये डिफरेंस है मोनेरा और प्रोटिस्टा में, दोनों में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बट मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स है दे हैव नो ट्रू न्यूक्लियस इन देयर साइटोप्लाज्म। अब देखिए, these are made up of one cell, their structure is also very simple. These include bacteria. The singular of bacteria is bacterium. Bacteria are found everywhere on the earth. Bacteria are found everywhere in the earth. Bacteria are found in the air, in the soil, in the water, or in our body. Okay? Some bacteria can prepare their own food, other obtain food from other living organisms and dead bodies. Some bacteria cause diseases in plants and animals. अब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया की भी टाइप्स होती है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है, while some bacteria obtain food from other organisms and the dead bodies of the organisms. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। कैसे बेनिफिशियल होते हैं? सम बैक्टीरिया हेल्प्स इन फूड डाइजेशन, हमारी फूड डाइजेशन में हेल्प करती है। सम बैक्टीरिया हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंपोनेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या करती है? फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। सम बैक्टीरिया हेल्प्स इन मेकिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट। तो अब बैक्टीरिया है ना, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है ना, वाइल कुछ बैक्टीरिया जो है वो डिजीजेस कॉज करती है हमारी बॉडी में। जैसे कौन सी डिजीजेस है? डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया और कौन सी डिजीजेस है? आप लोगों के माइंड में आ रहा है कुछ? ये हमने पढ़ा भी है फोर्थ में, जो बैक्टीरिया से डिजीजेस होती है बॉडी में, दैट इज टाइफाइड है इसका एक, वो जो हमने पढ़ा था नमूनिया हमने पढ़ा था, दैट इज ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया। हमने पढ़ा था टीबी, वो भी एक डिजीज है जो कि कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, किंगडम मोनेरा की समझ आ गई आप सबको? किंगडम मोनेरा इज व्हाट, दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, they are mostly microscopic, their structure is very simple, they are unicellular but they have no nucleus in their cytoplasm. क्या है? That is the characteristic of kingdom monera. ठीक है, now we are going to start the kingdom protesta. अब जैसा हमने पढ़ा कि किंगडम जो किंगडम मोनेरा है they are unicellular organisms, while protesta is also unicellular organisms, but अब पढ़ते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक प्रोटेस्टा को मोनेरा से क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है। अच्छा, the organisms within this kingdom are also unicellular but they have a nucleus. ये डिफरेंस क्या हो गई? यूनिसेलुलर but they have a nucleus. ठीक है, most member of this kingdom, अब इस kingdom में plants भी involved है। most member of this kingdom like plants undergo photosynthesis to produce their own food, while some animals से क्या है? they have locomotory organs, they have a locomotory organs के locomotion, जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम का जो locomotory organs है that is the cilia. ठीक है, जो उसके ऊपर बाल होती है which helps in locomotion. amoeba है, amoeba have the locomotory organs, pseudopodia. ठीक है, so that is also the so most protesta जो है that is aquatic because they live in water. It includes amoeba, paramecium and algae. क्या है? It's include amoeba, paramecium because these all are single cell organisms, but the difference is they have a nucleus. ठीक है, for example Spirogyra. What is Spirogyra? It is a green freshwater algae. ठीक है, amoeba and paramecium are made up of one cell. Algae may consist of one cell or many cells. These are found in river, ponds and ocean. They have chlorophyll. Chlorophyll की बात आ गई तो it's mean plants. Plants में algae भी आता है, plants में क्यों नहीं आता? Algae भी तो green in color होता है, it's mean they have also undergoes the photosynthesis. उसमें भी photosynthesis का process होता है because they have chlorophyll. But what is the difference? They have the lack of stem, roots and leaves.
आप लोगों ने देखा होगा ये जो सी साइड्स पे सर्फेसेस होती है, सी में जो रॉक्स पड़े होते हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने ग्रीन एल्गी देखी होगी ना. दैट इज ऑल्सो अ प्लांट, दैट इज ऑल्सो अ प्लांट. दे हैव क्लोरोफिल, they can make their own food by itself. But what is the difference, but ऐसी कौन सी चीज है जो कि other plants से इसको differentiate करती है? Because the algae have no true stem, roots and leaves. तो समझ आ गई किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम मोनेरा की. किंगडम मोनेरा में भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, बट दे हैव नो न्यूक्लियस इन देयर साइटोप्लाज्म. While Protesta में जो unicellular organisms है, क्या है? They have nucleus in their cytoplasm. ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में. अब आप लोगों ने समझना है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को. ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे पास उनको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सिंगल सेल mean their body is made up of only one cell. One cell में यहाँ पर examples दे कि अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. बॉडी तो दोनों की, बट आप लोग कंफ्यूज होंगे कि इसमें बैक्टीरिया क्यों है, क्योंकि बैक्टीरिया इज आल्सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो वो तो अलग सेपरेट किंगडम्स वाली बात आती है ना. हमने तो बैक्टीरिया को रखना ही सिंगल सेल में है, क्योंकि बॉडी बनी सिंगल सेल है. अभी जो किंगडम वाली बात आएगी तो फिर वो किंगडम वाइज इनमें डिफरेंस है. ठीक है, कुछ प्रोटेस्टा में है, कुछ मोनेरा में है. व्हाइल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी बॉडी की एग्जांपल ले ले. क्या हमारी बॉडी वन सेल से बनी है? नो, और बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. इसी तरह प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर. आप लोगों ने अब कंफ्यूज नहीं होना. जहां पर यूनी का मतलब आए मीन वन सेल, जहां पर मल्टी का मतलब आए तो माइंड में रखें कि दीज आर, यहाँ पर बात हो रही है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस की. ठीक है, क्योंकि हाँ, ये बॉडी जो है मल्टी सेलुलर से बनी हुई है, मल्टी सेल से बनी है. ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट किंगडम है, नेक्स्ट किंगडम दैट इज किंगडम फंगाई. अब किंगडम फंगाई में हमारे साथ क्या इंक्लूड है? आप लोगों ने सब, कुछ लोग इसे फंजाई कहते हैं, कुछ लोग इसे फंगाई कहते हैं. बहुत प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट. ठीक है, फंगाई भी ठीक है, फंजाई भी ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें. अब फंगाई में क्या है? फंगाई इंक्लूड यीस्ट, मशरूम्स एंड मोल्ड्स. अब इसमें एक बात यह है कि दे कैन आइदर बी मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल्ड. ठीक है, फंगाई देखें ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेल भी हो सकते हैं. मल्टी सेलुलर में इसकी एग्जांपल आप लोग देख सकते हो मशरूम्स. मशरूम मल्टी सेलुलर है बिकॉज वी कैन सी इट विद नेकेड आईज, हम इसे देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप. व्हाइल अदर टाइप्स जो फंजाई की है, वो फंगाई के वो माइक्रोस्कोपिक है, हम उसे सिर्फ अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं. ठीक है, तो इस वजह से दे कैन आइदर बी मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल. ठीक है, all the fungi have filamentous like structure except yeast cell. आप लोगों ने मशरूम का स्ट्रक्चर तो देखा है ना. मशरूम का जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, इसके नीचे वो जो थ्रेड लाइक वो डंडी सी लगी होती है, दैट इज एक्चुअली फिलामेंट. क्या है ये फिलामेंट है. ठीक है, सो फंगाई हैव द filamentous structure and they usually grow in places where are moist and warm enough to support them. Fungi उस जगह पर उगती है जहां पर moist हो और गर्म हो. Fungi actually shady जगह पर होती है. आप लोगों ने ट्री देखी है ना, वो ट्री की नीचे वो जो moist place होती है, shady सी, उसी जगह पर fungi क्या करती है? ग्रो करती है. ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक फंगस है ना. फंगस है तो जाहिर सी बात है ये moist places पर ग्रोथ करती है. They do not have chlorophyll. आप मशरूम को देखें, क्या मशरूम ग्रीन कलर का है? अदर फंगाई को देखें तो क्या वो ग्रीन कलर के हैं? No, so it's mean they do not have chlorophyll, so they cannot make their own food. They absorb food from the place where they live. ये वहां से फूड एब्जॉर्ब करती है जहां पर ये रहती है. ठीक है, यीस्ट इज माइक्रोस्कोपिक, यीस्ट सबने देखा, और इट इज माइक्रोस्कोपिक फंगाई. Rhizomes is also called bread mold. अगर अब आप लोगों को याद आ गया होगा कि हमने ड्राइंग में एक स्ट्रक्चर ड्रा किया था, rhizomes, याद है ना? rhizomes हमने ड्रॉ किया था ना. That is what? That is actually fungi. क्या है? It is actually the appearance of black spots on bread and fruits.
जब हम लोग ब्रेड्स या फ्रूट्स व्हाटएवर जो भी हो ना, उसको हम आउटसाइड रखते हैं फॉर सम डेज, उसको हम बाहर रख के वार्म प्लेसेस पर, तो उस पर ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं, ब्लैक स्पॉट्स लाइक राइजोप्स। देखिए ना, इसके नीचे स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया गया है, ब्लैक स्पॉट्स इसके ऊपर निकल आते हैं। सो दैट इज एक्चुअली राइजोप्स, द अपीयरेंस ऑफ ब्लैक स्पॉट्स ऑन द ब्रेड, fruits or other food items that is left outside for some days, so that is actually rhizomes. समझ आ गई rhizomes की? देखिए हमने black structure क्या है ना, it is a thread like structure. It grows on moist bread fruits. The mushrooms are umbrella like. Mushrooms umbrella like होते हैं ना, they grow on the piles of rotten matter. Rotten matter mean गली सड़ी चीजों के ढेर पर होते हैं। some mushroom, कुछ mushrooms की types ऐसी होती है जो हम खाते हैं, ठीक है, while कुछ mushrooms जो होती है वो हमारे लिए poisonous होती है ना poison, हम all kinds of mushrooms तो नहीं खा सकते ना, तो that is actually fungi. fungi क्या है? फंगाई को मैं आप लोगों को सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ कि फंगाई इंक्लूड यीस्ट, mushrooms and molds. They can either single cell or multicellular. All the fungi have filamentous-like structure except yeast cells. Fungi usually grow in places which are moist and warm enough to support them. ठीक है, आज के लिए हमने ये 3 किंगडम स्टडी कर लिया। आप लोगों ने इस 3 किंगडम को रीड आउट करना है, समझ आ गई ना, और समझना है इन 3 किंगडम्स को, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज।